श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नवकन. My name is Divakar Singh. I belong to Rajput community. Our family migrated almost 100 years back to United States of Andhra Pradesh. Today I am very proud to be associated with this Ram Mandir Kshetra Nidhi Samarpan program. This is something we fought for 500 years. Being a Hindu majority country, still we gone through all the legal procedures and we won the Ram Mandir in the era of ours, and it is contemporary kind of a situation where we all seen the Ram Mandir coming in India. I am very proud to be associated with this program. Thank you so much. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Bhajo deen bandhu dinesh, danav daite vansh nikandanam raghunat. Your kind invitation, and good morning and good afternoon my friends. Almost अभी तो good afternoon हो गई है. It's fantastic to be part of this program today. Thanks to अभिजीत भाई. जो मंदिर का मामला था वो साल हुआ. Thanks to Narendra Modi ji team and our RSS party who have really made their efforts to get these things done. We are so lucky and fortunate to be an Indian, more than that the Hindus, जिसमें सबकी आस्था जुड़ी हुई है हमारी. और जिस तरह से काम चल रहा है राम जी के मंदिर का, मुझे लगता है कि विश्व में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होने वाला है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए. जिस तरह से आज पिछले कुछ सालों में काशी की, अयोध्या की कायापलट हो रही है, थैंक्स टू द विजनरी मैन आवर beloved Prime Minister Narendra Modi ji and the Yogi ji of course in the UP, the kind of hard work, the kind of dedication, the determination they have for all this work. और आज हमारा सौभाग्य है कि हम जितने भी 50, 60, 70 लोग इकट्ठे हो सकते हैं. आते जा रहे हैं लोग. शायद हमारे चीफ गेस्ट भी कुछ देर में आएंगे. मुझे लगता है करीब 1-1:15 बजे तक वो आएंगे. Already he is in the meeting in addition, and probably after some time he will be here. By that time what I thought is maybe we already have almost 1 hour here, so we can introduce ourselves and everybody can speak for some time. तो जब तक हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे तो एक बड़ा अच्छा मौका है. As Madam introduced me, myself is Rajendra Singh Lamba, basically businessman. We have Lamba group of companies. We are into marbles, granites, garments, logistics, exports and all. So, and apart from that, I am the president for Jat Samaj Hyderabad, and we are the life trustee for, we have Haryana Nagrik Sangh here. All Haryanvi people, we have a very solid organization called Haryana Nagrik Sangh, and we have our own place at Secunderabad Paradise Haryana Bhavan, 5-floor building where we keep having our program of our own Samaj and from Haryana people. So that's how, and we are basically social people. Wherever anything good happens, we are always there. No matter, first of all, we are the good human beings. आदमी को इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें शुरू होती है. चाहे वो हमारी कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो, कोई भी समाज हो. आदमी अगर अच्छा इंसान है तो हर काम अच्छा ही करेगा. और शायद हम बहुत फॉर्चुनेट है आज जितने भी भाई यहाँ काम करने का जिसको मौका मिलता है. आई ऑलवेज फील दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें मौका मिलता है कुछ करने के लिए. ऑलरेडी ये काम बड़ा प्रोग्रेस में है. हमारी इंडस्ट्रीज़ की मीटिंग भी हुई थी परसों, करीमनगर में था मैं. वहाँ भी एक ऐसी ही छोटी सी मीटिंग हुई एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग द वर्क देयर. हर जगह पे ये काम चल रहा है, हर लेवल में ये काम चल रहा है.
और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मंदिर बने कि पूरे विश्व में जब अगर कोई देखे कि श्री राम की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए तो वो हमारे यहाँ अयोध्या में आके देखे, काशी में आके देखे। वी आर रियली ब्लेस्ड एंड आजकल हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग जो है, कल मैं कहीं देख रहा था कि कोई स्टेज में प्रोग्राम हो रहा था और जय श्री राम के कहीं नारे लग गए और हमारी एक नेता नाराज हो गई। ये एक ऐसा विचित्र देश है जिसमें हर तरह के लोगों का सम्मान होता है। ये बड़ी अच्छी बात भी है, वैसे डेमोक्रेसी है हमारी। तो अगर हम अपने देश में श्री राम नहीं कह सकते तो फिर हम क्या कह सकते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं, ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां भगवान श्री राम ने साक्षात जन्म लेकर एक युग पुरुष का हमें एग्जाम्पल दिया है। बाकी अगर कोई गीता को अच्छी तरह पढ़ लेता है, रामायण को अच्छी तरह समझ लेता है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी चीज़ में हमें विचलित होने की जरूरत है। जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हो सकता है और वो हंसी खुशी काट सकते हैं और सारी बुराइयों का नाश कर सकते हैं, हमारे सामने जब थोड़ी सी कोई चैलेंज आती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं कि अब कैसा होगा। और आजकल तो सारे साधन हैं, हाई टेक टेक्नोलॉजी है, गूगल बाबा आपके साथ है, कुछ भी नहीं पता है तो पूछ लो। उस जमाने में तो कुछ हुआ ही नहीं करता था। अगर उस वक्त में वो इतना कष्ट सह के एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि अगर आदमी की नीति और नियति दोनों सही हो तो हर चीज पॉसिबल है। आज हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हम उनके चरणों में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे लिए मौका है कि हम सब लोग जिनसे जितना जितना सामर्थ्य हो सकता है, जितने हम अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, उतने हमें करने चाहिए और बढ़िया से बढ़िया भव्य मंदिर बनाकर हमें प्रेजेंट करना चाहिए दुनिया को। बड़ा पुराना मसला था ये साल होना ही लोगों को लगता था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को भेजता है धरती पे जिनका पर्पस वही होता है। काफ़ी तकलीफें भी आई, काफ़ी चैलेंजेस भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और काम का मारवाड़ी में एक कहावत है, वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और वो सच है। जब जिस चीज़ का वक्त आता है उस टाइम पे काम अपने हिसाब से अपने आप को। भाग्य है कि हमारे सामने ये काम हो रहा है, हम अपने बच्चों को क्या धरोहर देके जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं है मैडम ने मुझे कितनी देर के लिए खड़ा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब भाई लोग अपना अपना जो है 5-10 मिनट का हम लोग अगर आपस में बात करेंगे तो जब तक थोड़ा टाइम भी हमारा निकलेगा और हम एक दूसरे को जानेंगे भी। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मतलब समथिंग आई कांट यू कैन एंड समथिंग यू कांट आई कैन, बट टुगेदर वी कैन डू वंडर्स। वो जो बात है उसमें अगर हम लोग सब मिलके कुछ ना कुछ प्लान करते हैं तो वी कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ। क्योंकि ज़िंदगी में क्या है कि आदमी का हौसला होना बहुत ज़रूरी है, और जब एक दूसरे का सहारा होता है, साथ होता है, तो फिर कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। तो एक शायरी से मैं मेरा जो है ये स्पीच ख़त्म करता हूँ। हैदराबाद में रह के हमको आदत सी हो गई है थोड़ी सी, काफ़ी साल हो गए हैदराबाद में। ये रात ना महकती अगर सितारे न होते, ये रात ना महकती अगर सितारे न होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे न होते, कहाँ जाते हम सब फरियाद लेकर अगर जिंदगी में श्री राम जैसे सहारे न होते। कहाँ जाते हम सब फरियाद लेकर अगर जिंदगी में श्री राम जैसे सहारे न होते। So with this, I'll just end my talk, and I'll request other my colleagues and friends. Maybe Madam will call them, so you all can come and spend some time. You can share your views, so it can be helpful to all of us. By that time, the chief guest will also come and we'll start the program. Thank you so much, ma'am, for giving the chance. Now I would like to invite Mrs. Manjula Narsa to share her words. My name is Manjula Narsa and I'm a housewife, a very motivated one, I'd like to say. I'd like to tell you a bit about myself. So in March 2020 I was a liberal. So I feel if I can change so much, there is scope for everybody. I would question everything about our religion. More women participating here, that's my mission, and to involve as many youngsters as possible. The moment I
try to motivate youngsters, I get a firewall. They just go blank or they are against me. This is one thing that we must try to bring them over with a lot of love and understanding. That's one of my missions, to get as many people converted to understanding what Hinduism is all about and to get them interested and involved. I think we can only motivate them because they are really our foot soldiers and they are the ones who will execute everything that we decide. Their involvement is extremely imperative. Second thing is about mobilizing funds for Ram Janmabhoomi temple. I think we must understand ATG and explain that to people who are participating and involve them to the extent that each one can. Right from our servants, even if it's 1 rupee or 10 rupees, I think the very fact that they donate something involves them. I think that is very, very important that we involve even our servants, children, even if they have to take it out of their piggy bank, it doesn't matter. But if they pay that 1 rupee or 10 rupees, the sense of involvement and inclusion. अभी आपके सामने मैं कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो कि बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम आज सभी कमिटी लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ नमस्ते एंड जय श्री राम कहिए, क्योंकि आज का मकसद श्री राम जी ही हैं जो हमारे एंसेस्टर हैं और हमारे लाइफ का पाथ हैं जो हम जीते हैं। एक्सक्लूसिव मीटिंग with RSS Kshetra Pracharak Shri Sudhir ji, and be a part of history in the making. The once in a lifetime divinely ordained opportunity to be personally involved by way of contributions towards the rebuilding of our ancestral and civilizational heritage with the people designated, people in charge. Today we are gathered here for the collection towards this historic opportunity, and if possible, शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं
शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। Now I would like to invite Mrs. Monica ji. Please come. बोलने का मौका मिल रहा है। सुधीर जी, मैं अभी आपके साथ वहाँ पर भी थी। So I think what is very important for all of us, हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, it's a historical moment, है ना? हम सब अपने बच्चों और अपने grandchildren को we will be able to tell them that we participated in the Ram Janmabhoomi the कार्यक्रम, हमने मंदिर में अपना हाथ बटाया, ये बहुत बड़ी बात होगी। My small, earlier where Sudhir ji was and there was a small program, I said the same thing there also, that this is an opportunity for Jan Jagran. More than that, it is an opportunity for Dharma Jagrana. So हमारे जैसे लोग जिनको बहुत कम समय मिलता है किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन करने के लिए, एक छोटा सा एक विंडो है अब से लेके जब तक कि ये कार्यक्रम चलेगा कि हम अपना समय निकालें और इसमें कुछ ना कुछ योगदान दें। और आज यहाँ जितने लोग हैं हम सब जानते हैं महत्व क्या है, राम मंदिर का महत्व क्या है और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते। और ये हमारा दायित्व है कि हम ये जो आवाज़ है, ये जो हमारा काम है, हम उन तक लेकर जाएं। बहुत ज़रूरी है जो पिछड़ा वर्ग है उसको अपने धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ा संकट अभी वहाँ पर आया हुआ है ना? तो what do you sell to somebody who's already sold to your idea, right? We all are already sold into this cause. But each one of us should contribute and go and reach out to those people who haven't heard us, who don't know about what's going on with Ram Mandir, who don't know the history behind the Ram Janmabhoomi. Let us be the light, let us go to them, let us promote and also inspire the underprivileged. I think if we can all do that, we're giving our contributions, that's all very great, but the actual contribution is if you can ignite a family or a few people towards a cause, that's the actual contribution we would have made. India is a rich country, we will be able to build the temple, we will get the amounts. सुधीर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पे बोली और बहुत ही उत्साहित हो गए थे लोग सुनकर कि केवल राम मंदिर ही नहीं, लगता है कि जो भी इस बार हमारा the collection will be enough to even go to build Mathura and Kashi. तो इतना इस तरह से I think इस देश में राम मंदिर के प्रति एक वो बना हुआ है, बस थोड़ा सा हमें पुश और करना है और वो है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको इससे जोड़ना है। धन्यवाद। अभी now I would like to invite राम मंदिर नहीं है ये, हम अपने आप को अपने आप से जोड़ रहे हैं। हम वो चीज़ को जोड़ रहे हैं अपने आप से जो हम हमारे बाप दादा परदादा पिछली 15 पुरुष जो रामायण पढ़ते थे, जो सुंदरकांड पढ़ते थे, जिसको पूछते थे, जिसके नाम पे आपका नाम रखा गया है, आपको उसी की पहचान आपसे कराई जा रही है कि क्या वो शख्सियत क्या थी, वो पर्सनालिटी क्या थी जो आपका एक जो है सांस्कृतिक स्टैंड पॉइंट है, आपका जो योर हेजिमनी और द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। I would not even call it a Ram temple. I would say this is the symbol of civilization for the world to look at. हमारी जो परंपरा है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो अस्तित्व की महानता है, उसका प्रतिबिंब है। उसका प्रतिबिंब हम हैं, उनके क्या कहते हैं, कुछ सिंबॉलिक श्री राम जी। तो हम अपने आप को राम जी से जोड़ रहे हैं और राम जी को अपने आप से। और as Monica ji said, we will leave this legacy for our future generations. And that is so very critical for this civilization. It is not a moment in the day. It is a moment in the time of this civilization which is 15,000-20,000 years old. As somebody said, India has given the world a curative aspect in terms of COVID medicine. I would say India is the only place to look either for religious guidance, spiritual guidance, आध्यात्मिक ज्ञान, नालंदा से लेके तक्षशिला से लेके IIT IIM तक। हमको ये सारा इस भावना और ये सूत्र से जोड़ना है। हमको अपनी पहचान अपने आप को करानी है और इन टर्म्स ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ वे ऑफ लिविंग। सो हमारा छोटा सा, ये हमारी सौभाग्य की बात है हमको, क्योंकि ये अवसर मिला है कि हम इसके एक भागीदार हो सकें। छोटी
छोटी सी जहाँ तक अपना हो सकते हो. एंड माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द कम्युनिटी हेड्स हु आर असेंबल्ड हियर इज, आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी. माई रिक्वेस्ट इज टू कीप इट गोइंग. Not only keep it going at yourself, make sure to discuss this with your neighbor, your family member, as far as your reach goes, and also inspire the next person to talk about it to the next person. Because ये जो अभियान अब चला है, let it continue forever. We just about started and we made a great start. धन्यवाद. Shri Diwakar Singh ji to come on the dais to Introduce in Telugu to connect to the land where we are sitting now. శ్రీ సుధీర్జీ గారు కర్ణాటక ఉడిపి జిల్లా హెబ్రి గ్రామంలో జన్మించారు. బాల్యం నుండే స్వయం సేవక్ వైపు ఆకర్షితులయ్యారు అండ్ స్వయం సేవక్ అయ్యారు. అతను బీటెక్ సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత 1985లో మ్యాంగ్లూర్ వచ్చి ప్రచారకగా మారారు. కర్ణాటక దక్షిణ ప్రాంతంలో వివిధ స్థాయిల్లో ప్రచారక బాధ్యతలు నిర్వహించి 2018 వరకు కర్ణాటక దక్షిణ ప్రాంత ప్రచారక్, 2018 నుండి దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర సహక్షేత్ర ప్రచారక బాధ్యత నిర్వహించి ప్రస్తుతం గత 2020 మార్చి నుండి దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర ప్రచారకగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అతను కేంద్రము భాగ్యనగర్ మన ప్లేస్ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. వి ఆల్ వెల్కమ్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सभा में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम. वैसे मैं भाषणकार नहीं हूँ, वैसे मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ. आज मैंने हेडिंग देखा, भारतीय एकता संगठन. द वेरी वर्ड एकता, इट फैसिनेटेड मी. एकता, एकात्मता, कितना सुंदर शब्द है. देखिए, भारत जैसे विशाल देश में हजारों वर्षों से हमारी एकता या एकात्मता को कायम रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या व्यवस्था की थी. रामायण ने हमको जुड़ा. रामायण, महाभारत, कुंभ मेला, गाय, गंगा, ये सारे भारत में सभी प्रदेश में सर्वमान्य है. मैंने कुछ महीने पहले एक पुस्तक पढ़ा. मैंने लिंडा जॉनसन नाम के अमेरिकन राइटर ने लिखा था, इडियट्स गाइड टू हिंदुइज्म, पुस्तक का नाम था. बहुत अच्छा पुस्तक भारत के बारे में. उसमें कुंभ मेला के बारे में उन्होंने लिखा था. कुंभ मेला देखिए कितने हजारों वर्षों से हमारे देश में चलती आई है, और करोड़ से ज़्यादा, कितना करोड़ लोग आते हैं पता नहीं. इस साल मैंने लास्ट टाइम जब हुआ प्रयागराज में, उस समय 10 करोड़ से ज़्यादा लोग उधर एक बार आकर गए हैं, ऐसे सरकारी आंकड़े बताते. तो कितने हजारों साल से चलती है. तो भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी ने एक बार पूछा पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, ये क्या है, इसके लिए कैसे आप प्रचार करते हैं, इसके लिए कितना खर्च करते हैं. तब मदन मोहन मालवीय जी ने अपने झोला से एक पंचांग निकालकर पंचांग की एक पंक्ति उनको दिखाई, अमुक अमुक मास का पूर्णिमा के दिन ये होने वाला है, इतना ही, ये प्रिंट करने के लिए इतना खर्च है, उतना ही इसका प्रचार का खर्च है. और उस पंचांग का उस समय मूल्य था केवल 10 पैसा. मगर इतने हजारों साल से लोग आ रहे हैं ना. लिंडा जॉनसन ने उसका वर्णन ऐसा किया कि टोटल ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन और टोटल कनाडा का पॉपुलेशन पुट टुगेदर एंड डबल इट एंड लिफ्ट इट एंड कीप इट इन सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि प्रयागराज और सैन फ्रांसिस्को का पॉपुलेशन बराबर है. इसलिए ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन और कनाडा का पॉपुलेशन, ये दोनों को मिलाकर डबल कीजिए, सैन फ्रांसिस्को में रखिए 4 महीने तक विदाउट गिविंग एनी बेसिक फैसिलिटीज. नो पुलिस स्टेशन, नो रेस्टोरेंट्स, नो सुविधाएं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो हॉस्पिटल्स. मगर 4 महीने लोग आनंद से उधर रहकर बिना कोई कंप्लेंट, बिना कोई शिकायत, बिना कोई झगड़ा, धन्यता के भाव से वापस गए. तो दैट इज कुंभ मेला. ऐसे उन्होंने लिखा, दैट इज कुंभ मेला. ऐसे उन्होंने बहुत विवरण दिया है भारत के, ऐसे कुछ इसके लिए. ऐसे हमको जोड़ने वाली कितनी चीजें भारत में, कितने विषय है.
राम भी और रामायण भी हमको जुड़ा है। तो हिंदी में मेरी भाषा की गलती हो सकती है क्योंकि मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रामायण का रचना कब हुई कोई नहीं जानता। हम तो बताते हैं रामायण का युग कौन सा है, अभी तो कलयुग है। त्रेता युग में राम था और राम सूर्यवंश का 67th किंग, डायनेस्टी के 67th किंग है राम। रामायण केवल काव्य इतना ही नहीं है, रामायण एक इतिहास है भारत। वैसे रामायण सूर्यवंश का इतिहास है और महाभारत चंद्रवंश का इतिहास है। राम के बाद भी 60+ राजा हुए हैं। राम के बाद रामा इज द 67th किंग। विष्णुपुत्र देखिए, रघुवंश क्यों बोलते हैं राम का वंश को? रघु नामक एक राजा था। इक्ष्वाकु को क्यों बोलते हैं? इक्ष्वाकु नाम का एक राजा था। विष्णुपुत्र, ब्रह्मा, मरीचि ब्रह्मा, कश्यप, विवस्वान, कुक्षी, विकुक्षी, इक्ष्वाकु, बाण, अनरण्य, प्रथ, त्रिशंक, धुंधुमार, मांधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असिति, सगर, अंशुमंत, दिलीप, भगीरथ, ककुत्स्थ, रघु, पुरुषादक, कल्माशपाद, शंकण, सुदर्शन, अग्निपर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुशुक, अंबरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ, राम, उसके बाद कुशलवा, ऐसे चलता है उसका। ये भारत की सूर्यवंश की कथा है। देखिए, राम भारत का आत्मा है। राम हमारे पहचान का संकेत है। राम के बिना भारत के लिए कोई अर्थ नहीं। उस समय प्रिंटिंग नहीं था, कम्युनिकेशन का और कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। देखिए, आज भी इतने हजारों साल वर्षों के बाद भी भारत के किसी गांव में जाइए, कोई अनपढ़ व्यक्ति से पूछिए रामायण की कथा, उनको मालूम है किसने उधर तक पहुंचा उसको। बाह्य जगत के संपर्क भी नहीं है ऐसे वनवासी लोगों को भी रामायण की कथा मालूम है। उनमें भी मिट्टी राम, कांसी राम, पत्थर राम ऐसे नाम रखते ही ना। आप भारत के किसी गांव में जाइए, 6 लाख से ज्यादा गांव है, राम, कृष्ण, शिव, गणप, सीता, पार्वती, हनुमान, ये नाम के कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलते ही ना। अभी देखिए, एक समय मैं जब स्टूडेंट था उस समय दक्षिण भारत में 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे। आंध्र में NT रामाराव, कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े और तमिलनाडु में MG रामचंद्र। सब राम के नाम पर ही थे। इतना गहरा प्रभाव राम का और रामायण का भारत के ऊपर है। रामायण महाभारत कैसे रहना है इसके लिए रामायण आदर्श है, कैसे नहीं रहना है इसके लिए भी महाभारत एक आदर्श है। कैसे ये दोनों महाकाव्य है, केवल भारत का महाकाव्य नहीं है, दुनिया का महाकाव्य है। और दुनिया का जनजीवन के लिए इतना मौल्य, इतना संदेश रामायण महाभारत देता है। मगर 1915-28 में जन्मस्थान पर जो मंदिर था राम, तो उस मंदिर को मीर बाकी ने तोड़ा। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा। उसके बाद अतीत के माने इस 492 ईयर्स में 76 संघर्ष हुए। 76 संघर्ष में 4 लाख से ज्यादा रामा भक्तों ने बलिदान किया। और इंडिपेंडेंस आने के बाद भी 58 में केस प्रारंभ हुआ। 72 ईयर्स वी हैड टू फाइट इन द कोर्ट। कोर्ट में मुकदमा चली। ये दुर्दैव है क्योंकि सोमनाथ मंदिर तुरंत जीर्णोद्धार हुआ, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के इसको विरोध करने वाले कोई नहीं थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसके कारण, दृढ़ संकल्प के कारण सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मगर अयोध्या में वैसा नहीं हुआ। अभी नवंबर 9 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बेंच ऑफ 5 जजेस एक मत से निर्णय दिया, एक मत से जजमेंट दिया। उसे एक मुस्लिम जस्टिस भी था। इसे उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और वर्तमान चीफ जस्टिस श्रीपाद अरविंद बोबड़े और जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर अहमद, इन सबका एक मत का, सर्वानुमत का निर्णय था कि ये 14,000 स्क्वायर फुट जमीन ये रामलला का है। ऐसे उन्होंने निर्णय दिया। केवल निर्णय इतना ही नहीं दिया, उन्होंने केंद्र सरकार को डायरेक्शन भी दिया, विद इन 3 months यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी और ट्रस्ट टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल, ऐसे उन्होंने बताया। इसलिए फरवरी 5 तारीख को एक ट्रस्ट की घटना हुई, ट्रस्ट की गठन हुई। उसमें 15 मेंबर्स हैं और पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी उसका अध्यक्ष है और विश्व हिंदू परिषद के हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्रीमान चंपत राय जी उसके प्रधान कार्यदर्शी, जनरल सेक्रेटरी है। और आचार्य पूजनीय आचार्य गोविंद गिरिदास, शायद मुझे लगता है लास्ट वीक को
भाग्यनगर में थे, वो आए थे इधर, वे इसके कोषाध्यक्ष हैं। और इसके स्पोक्स पर्सन हम जानते होंगे तो हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट केशव पराशर, मुझे शायद उसको 80 या 90 प्लस है, 90 प्लस है, 93 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में, माने राम जन्मभूमि के इसके पक्ष में उन्होंने वाद किया, उन्होंने उधर आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने वो उसका स्पोक्स पर्सन। और अयोध्या के तो गणमान्य लोग उसके मेंबर्स हैं। सारे भारत के 4 कोने के 4 मठाधीश, पूर्व पश्चिम उत्तर ऐसे दक्षिण ऐसे 4 मठाधीश इसके मेंबर है। और एक अनुसूचित जाति के बंधु, वो भी इसके एक मेंबर है। अभी बिहार के कामेश्वर चौपाल, जिन्होंने 1989 नवंबर 9 को शिलान्यास का ये विधि विधान पूरा किया था। हमारे देश के सभी हजारों से ज़्यादा संत मठाधीश के महंतों के सम्मुख उन्होंने शिलान्यास का वो विधि विधान पूरा किया था, वो इसका मेंबर भी है। और भाई वर्ची ऑफ गवर्नमेंट के इसके पोजीशन के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के एक IAS अधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट का एक IAS अधिकारी और अयोध्या का जिला मैजिस्ट्रेट, दे आर आल्सो मेंबर्स, मगर उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। और ये भी लिखा है कि दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग हिंदू, नहीं तो वो भी मेंबर्स नहीं बन सकते, ऐसे उसमें है। और उसके बाद वो ट्रस्ट का बहुत मीटिंग्स हुए, मंदिर तो निर्माण करना ही है। मीटिंग्स के बाद ये उन्होंने तीर्मान किया कि, निर्णय किया कि उसमें इस प्लान में 4 पार्ट है। इस प्लान ये दैट डिस्प्यूटेड लैंड प्रीवियसली 2.77 एकर्स, उसमें मंदिर निर्माण करना, भव्य मंदिर निर्माण करना, दैट इज प्लान ए। प्लान बी, उसके साथ अटैच्ड 67.7 एकड़ जमीन, इसमें भोजनालय, यात्री निवास, वेद पाठशाला, एक यज्ञ पाठशाला और एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम, पार्किंग, थीम पार्क, ऐसे कुछ 14 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। छोटे माने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही है ऐसे, उसका निर्माण ये प्लान बी। और प्लान सी अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे अयोध्या का, क्योंकि एक बार मंदिर निर्माण होने के बाद लाखों यात्री आने वाले, राम भक्त आने वाले, इसलिए उसका अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको अपडेट करना। तो और प्लान डी में अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट से मंदिर का आउटर प्रीमिसेस तक एक फ्लाईओवर, उसके साथ रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करना, रेलवे स्टेशन, दैट इज प्लान डी। ऐसे ट्रस्ट ने एक प्लान, बहुत एक विशाल प्लान, बड़ा प्लान उन्होंने किया है। और ये भी स्पष्ट किया है कि प्लान सी अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और प्लान डी एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और प्लान ये मंदिर निर्माण, और प्लान बी बाकी सब भोजनालय, यात्री निवास, धर्मशाला, वेद पाठशाला, यज्ञशाला इत्यादि, ये ट्रस्ट निर्माण करेगा। इसके लिए सरकार का 1 पैसा भी हमें नहीं चाहिए। ये मंदिर ट्रस्ट का भी नहीं है, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट है, मगर मंदिर सारे भारत का हिंदू समाज का है। इसलिए हम हिंदू समाज के पास जाएंगे, हर एक परिवार में जाएंगे, हम पूछेंगे इसके लिए। भारत में 20 करोड़ हिंदू परिवार है, हम अपने पूरा ताकत लगाकर समाज को हमारे साथ जोड़ के हर परिवार में जाएंगे और इसके लिए हम निधि संग्रह करेंगे, ऐसे उन्होंने निश्चय किया। और सरकार को बताया कि सरकार भी इसमें कोई 1 पैसा भी देने की जरूरत नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे बताकर हमने इस निधि संग्रह के लिए एक कालावधि भी निश्चय किया। मकर संक्रांति से लेकर माघ पूर्णिमा तक, जैसे फरवरी 27 तक 44 डेज का एक कालावधि, इस कालावधि में हम निधि संग्रह सारे देश में करेंगे। मगर इसका नाम निधि संग्रह अभियान नहीं है, इधर लिखा है निधि समर्पण अभियान, क्योंकि संग्रह और समर्पण में बहुत अंतर है। हम किसी घर में जाकर आग्रह पूर्वक पूछ सकते हैं इतना ही देना, अगर हमने निश्चय किया कि किसी के पास हम इतना ही देना हम नहीं बताएंगे, वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक वो जितना देंगे उसको ही मिलेंगे। मगर वो हम आग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? वो उनका समर्पण, उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समर्पण होना है, ऐसे उनको आग्रह करेंगे। मगर इतना ही देना किसी के पास हम आग्रह नहीं करेंगे। ऐसे निश्चय करके सारे देश में हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अभी अभियान में, इस उद्यम में लगे हैं। संक्रांति से अभियान प्रारंभ हुआ है।
इसके लिए घर घर जाने के लिए हमने 10 रुपए की एक कूपन, 100 रुपीज़ का कूपन, 1000 रुपये का कूपन और 2000 से ज़्यादा देने वाले के लिए एक रिसीट बुक, ऐसे हमने ये निश्चय किया। जो 20,000 से ज़्यादा देने वाले उनको चेक में ही देना पड़ेगा, ऐसे भी हमने निश्चय किया। उनका पैन नंबर बाकी सब लेने वाले हैं। ऐसे निधि संग्राम कर रहे हैं, लोग समर्पण कर रहे हैं। इसके इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड। ऐसे बेंगलुरु में मैं 4-5 दिन इससे पहले बेंगलुरु में था। बेंगलुरु में एक चप्पल रिपेयर करने वाले पति पत्नी दोनों 20 साल से फुटपाथ में उनका घर है, छोटा टेंट बना के उधर ही उनका अगले संतान भी उधर ही जन्म हुआ है। वैसे वो पति और पत्नी दोनों ने प्रत्येक 1,000 रुपये दिया। आश्चर्य लगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता उस एरिया में वो वाइट ड्रेस पहनकर, शाल पहनकर पहले दिन राम भजन गाते गाते दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ संग्रह के लिए जा रहे थे। उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, उन्होंने बताया हम देंगे, ऐसे बताया। दिया कितना? 1,000। पत्नी ने 1,000 दिया, पति ने भी 1,000 दिया। और उसी एरिया में भीख मांगने वाले बूढ़ी माँ ने पूछा, उन्होंने उस दिन की उनकी कमाई 50 रुपीज़ तुरंत उन्होंने पूरा दिया। उनको ये जानकारी थी कि 1992 में बेंगलुरु में भी बहुत बड़ा वो कार सेवक जाने के लिए, कार सेवक के लिए लोग गए थे ना, हजारों संख्या लाखों संख्या में। 6 लाख कार सेवक उधर गए थे उस समय, सारे देश से। बेंगलुरु से भी बड़ी संख्या में बेंगलुरु से भी गए थे। ये बूढ़ी माँ को भिक्षा की, उसको ये जानकारी थी, उन्होंने पूछा, वही आंदोलन था, उसने दिया है। और मध्य प्रदेश की एक माँ, उन्होंने 92 दिसंबर 6 को उधर का ढांचा गिर गया, हमारे कार सेवक ने उसको गिरा दिया। उनको लगा कि अभी मंदिर निर्माण होने वाला है, क्योंकि उधर का वो ढांचा गिर गया, अपमान का संकेत गिर गया, भविष्य में मंदिर निर्माण होने वाला है। एक सामान्य परिवार की एक माँ थी, उन्होंने इसलिए उस दिन से अपने हुंडी में, गोलक में हर दिन 1-1 रुपया डालती आई। अभी देखिए 28 ईयर्स हो गया। अभी हमारे कार्यकर्ता उनके यहाँ गए, उन्होंने पूरा हुंडी उनको दिया उसे, 28 × 365। सामान्य परिवार के कौन इसको निर्माण करने वाले, उनको कुछ भी पता नहीं। RSS ये भी उनको पता नहीं, मंदिर निर्माण होने वाले। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी बताया था कि मेरे बाद भी और कभी भी कोई इधर मंदिर निर्माण के लिए आएंगे, उनको ये उधर देना, उनको देना, ऐसे बताकर रखी थी उन्होंने। ऐसे कई प्रसंग, हृदयस्पर्शी प्रसंग, रोचक प्रसंग, बहुत प्रेरणा देने वाले प्रसंग सामान्य घर से भी ऐसे हमको मिल रहा है। ऐसे अभियान अभी चल रहा है, आप भी सब लगे हैं इसमें। इसलिए मैं आपसे ये कहता कि आपने खुद का समर्पण आपने किए होंगे। मैं आपसे ये विनम्र विनंती करता हूँ कि केवल आपका इतना नहीं, अपने परिवार से, अपने बंधु मित्रों से, इतना नहीं, अपने लोकेलिटी में सबके पास जाकर उनको एक मौका देना है। उनका जीवन का एक ऐतिहासिक और सुवर्ण मौका है उनको इसके लिए समर्पण करने के लिए। इससे उनको वंचित नहीं करना है। इसलिए हमारे जीवित काल में मंदिर निर्माण हो रहा है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। क्योंकि 4 लाख राम भक्तों ने बलिदान किया इसके, और कितने कार सेवक ने अपना बलिदान भी किया। वहीं राजस्थान के पास वो नागौर जोधपुर के पास, गांव का नाम मुझे पता नहीं, नागौर के पास छोटा सा गांव, हमारे अखिल भारतीय बैठक थी। उस समय मैं विवाह प्रचारक था, 96 में या 97 में। उधर सारे भारत की सब विवाह प्रचारकों की बैठक थी, अखिल भारतीय बैठक तिवरी में, तिवरी नामक एक गांव, तिवरी आश्रम में हुआ था, कोई बाबा का आश्रम। जाते वक्त एक घर में सभी हम भारत के विभाग प्रचारक, मैंने 400 हमारे प्रचारक एक घर में गए। वो घर, उसका नाम था सेठाराम परिहार। वो 92 अयोध्या में कार सेवक नाते गए, गुंबज पर चढ़े 1990 में। उस समय गोलीबार में उसकी हत्या हुई, हुतात्मा हो गया। उनके घर में गए, शादी होकर केवल 1.5 साल हुआ था, एक छोटा सा शिशु था उस घर में। उस घर में हम सब गए थे। उसके घर में जाकर उसमें माता जी को नमस्कार करके हम सब आए। ऐसे कितने 400 से ज़्यादा हमारे कार सेवकों ने बलिदान भी किया। ऐसे अगस्त 5 को जब भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ तो अयोध्या में हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी गए थे और सब देश के प्रमुख मठाधीश के समक्षम
उन्होंने भूमि पूजन का धार्मिक विधि विधान पूरा किया और मंदिर निर्माण के लिए चालन भी उन्होंने उधर से शुरू किया। इस समय सारे देश के 3000 से ज़्यादा नदी का पवित्र तीर्थ और देश के प्रमुख श्रद्धा केंद्र ऐसे टेंपल के पवित्र मृतिका, इतना ही नहीं, जो हुतात्मा हुए बलिदान किए ऐसे कार सेवकों का घर के आंगन के पवित्र धूल वो भी हमने उधर लाए। इसलिए सारे भारत का एक एकात्मता और एक उधर उपस्थिति है इस कार्यक्रम में, अव्यक्त रूप से उपस्थिति है। ऐसे भूमि पूजन कार्यक्रम उस दिन हुआ अगस्त 5 को। अभी निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, हम तो धन संग्रह कर रहे हैं, लोग समर्पण भी कर रहे हैं। ऐसे 3 साल इसके लिए, निर्माण के लिए 3 साल ऐसे L&T ने निश्चय किया। सो इसका कॉन्ट्रैक्ट L&T ने लिया है, सहर्ष से लिया है। और 2023 के पहले, श्रावण मास के पहले इसका निर्माण पूरे होने वाला है। 3 इयर्स उन्होंने बताया। और मुझे लगता है कि इसका लोकार्पण, अभी तो कोरोना का संकट काल में संख्या पर निर्बंध था, इसलिए भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए सबको बुलाना संभव ही नहीं था। इसलिए लोकार्पण कैसे करना, बहुत लोग सुझाव दे रहे, आप ही सुझाव दे सकते हैं। अभी एक ऐसा एक पिक्चर ट्रस्ट के सामने आया है कि तो 1 दिन का नहीं लोकार्पण कार्यक्रम, एक एक प्रांत के 1,000 लोगों को, उधर के गणमान्य लोग, संत और समाज के प्रतिष्ठित लोग, एक प्रांत के 1,000 लोगों को एक दिन बुलाना है। इतना ही नहीं, केवल भारत के अंदर से नहीं, भारत के बाहर भी जितने देश हैं जहाँ हिंदू एक साइजेबल कम्युनिटी है, हिंदू उधर रहते हैं, ऐसे 40 से ज़्यादा देश है, उस देश से भी बहुत प्रमुख लोगों को, हिंदू लोगों को बुलाकर एक कार्यक्रम करना, एक ऐतिहासिक लोकार्पण कार्यक्रम करना, केवल एक दिन का नहीं, मुझे लगता है 2 महीने का होने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए अभी प्रारंभ में शायद मोनिका जी ने या हमारे इसने बात किया और एक ने बात किया है। वैसे ये निर्माण, मंदिर निर्माण एक बात है, मगर ये मंदिर किसका संकेत है? जो हमारे संस्कृति, धर्म और जो अपनापन है उसका संकेत है राम। केवल बाकी मंदिर जैसा वैसा मंदिर नहीं है, नहीं तो इसके लिए इतना लड़ाई क्यों करना पड़ा। इसलिए इसके बाद सारे देश की सोचने का एक, मुझे लगता है डायरेक्शन बदल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उसमें एक बड़ा, एक अच्छा परिवर्तन हमें दिख जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और मोनिका जी ने उधर भी बताया कि केवल मंदिर निर्माण करना, इसके लिए जनजागरण करना इतना ही नहीं है। सो एक्चुअली मंदिर हमारे हृदय में निर्माण होने वाला है। जो राम ने अपने जीवन में जो प्रतिष्ठापित किया मौल्य है, जो मौल्य है, वो मौल्य को हमको अपनाना है, हमारे जीवन में अपनाना है। वैसे राम ने तो निषाद राज को गले लगा दिया, घोह को गले लगा दिया, और माता शबरी ने जो प्रेम से दिया उसको उन्होंने लिया, स्वीकार किया। ऐसे समाज में जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको उन्होंने आलिंगन किया, उनको अपना ऐसे ये दिया, बंधुत्व का और प्रेम दिया उन्होंने। वैसे वो मौल्य भी हमारे जीवन में उसका प्रतिष्ठापन हमको करना है। केवल वो मंदिर एक संकेत है, ऐसे मुझे लग रहा है। आप सब इस काम में लगे और अभी भी हम कर रहे हैं, समर्पण मैंने संग्रह कर रहे हैं। मुझे लगता है फरवरी 27 तक, मुझे पता नहीं इधर के हमारे कार्यकर्ता हमको बताएंगे, तब तक हम घर संपर्क करेंगे। भारत में 6 लाख गांव है, उसमें 5 लाख गांव तक हमें जाना है कम से कम, और 20 करोड़ हिंदू परिवार है। हमें लगता है कि हम 12 करोड़ तक पहुंच सकते हैं हमारे पूरा ताकत लगाकर, और समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 20 करोड़ भी हम हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। अभी नॉर्थ ईस्ट से उधर के कार्यकर्ता ने बताया, नॉर्थ ईस्ट के हर एक गाँव में, जो पहाड़ी इलाके में जितने गाँव हैं, जितने घर है, सब नॉर्थ ईस्ट के 7 उधर ये है ना स्टेट से, सभी गांव में हम जाएंगे। पहले उन्होंने बताया हम 50% जाएंगे, अभी इतना रिस्पांस मिल रहा है कि हम सभी घर में जाएंगे, ऐसे वो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल मंदिर निर्माण इतना ही नहीं, मंदिर के लिए जो प्रयत्न चल रहा है, ये अभियान भी मुझे लगता है एक ऐतिहासिक अभियान है। ये मंदिर के लिए जो संघर्ष चला 1990 और 1992 में, 6 लाख कार सेवक सारे देश के कोने कोने से उधर गए ना, ये भी मुझे लगता है एक ऐतिहासिक संघर्ष है। दुनिया के 200 से ज़्यादा जो जितने कंट्रीज हैं,
उनके इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ है। तो 6 लाख कार सेवक उधर तक जाना ही ना, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन। इसलिए ये भी जो प्रयत्न अभी हम कर रहे हैं निधि संग्रह के लिए, ये भी एक ऐतिहासिक होने वाला है। मैंने इस कार्यक्रम में उधर बताया, लोग इतना दे रहे हैं, इसलिए हमने टारगेट इतना ऐसे नहीं रखा है। टारगेट केवल घर का टारगेट है, 12 करोड़ घर का टारगेट। यदि संभव है तो 20 करोड़ घर तक जाना ही, हर एक घर में जाना। पैसा वो देंगे नहीं देंगे इसके लिए कोई, मगर दे सब दे रहे। अभी अनुभव ऐसा है कि 10 रुपये का एक कूपन, इसके लिए कोई कीमत नहीं। स्लम में भी लोग बता रहे हैं 50 रुपये दे रहे, स्लम में भी हम 10 रुपये उनको दिखा रहे हैं, मगर वो 50 दे रहे, 100 दे रहे। आश्चर्य लगता है। इसलिए मुझे लगता है हमारा टारगेट घर है, पैसा नहीं, मगर पैसा इकट्ठा होगा ही, क्योंकि राम का काम है, वो करेगा हमारे हाथ से। मैंने इसलिए उधर भी बताया, मजाक के लिए बताया, धन इतना संग्रह हो रहा है, केवल अयोध्या का नहीं, मथुरा काशी भी इसमें निर्माण हम कर सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर मंदिर निर्माण करना है, पहला फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद भारत का पुनर्निर्माण करना है, भारत का पुनर्निर्माण। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमारा सोच का डायरेक्शन भी बदल रहा है मंदिर निर्माण की। इसलिए एक ऐतिहासिक अभियान में हम सब भाग ले रहे हैं, और इसके आगे भी और 10-15 दिन करना है। तो मुझे लगता है कि इस लोकेलिटी में जितने लोग हैं और हमारे परिवार के, हमारे मित्र भारत देश में किधर भी, उनको भी बताकर उनको भी मौका देना है, इसके लिए समर्पण करने का। इतना ही आपसे विनती करके मेरा वाणी को मैं समाप्त। सबको नमस्कार। जुड़ा हुआ हूँ। आज ये जो भारतीय एकता संगठन हम जो काम कर रहे हैं, ये कितने समाज के लोग आए हैं। आप देखिए बिहार से हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं ये मंदिर निर्माण के पक्ष में। ये गुप्ता है, यूपी कम्युनिटी से है, फिर हमारे लांबा जी है, हरियाणा के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। श्याम जी है हमारे, श्याम जी आप तरफ, श्याम जी तो है हमारे सिंधी के, ये तो कितने सिल्वर के ब्रिक्स भी भिजा चुके हैं और भी करेंगे। तो ये और मनीष जी, डॉक्टर मनीष अग्रवाल मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं, बहुत काम करते हैं, ऑलरेडी इन्होंने बहुत काम किया है। तो हम उनसे इल्तिजा है कि थोड़ा और भी कुछ करें, जुड़े रहे हैं। तो ऐसे हमारे बंगाल के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, और किसी को मिस किया मैंने, हाँ पंजाब के वेरी फायरी बलजीत जी, हाँ इन्होंने हमारे जीएचएम से इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बीजेपी के ये थे मिस्टर नरेश भी आए हैं, जरा उठिए, ये भी जुड़े थे हमारे साथ में, वो भी कर रहे हैं मंदिर निर्माण के काम से। और किसी को मिस किया हमारे कम्युनिटी में निवेदिता बोस, प्रोफेसर निवेदिता बोस बंगाल के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोनिका जी तो है ही ऑलरेडी, हमारे मंजुला जी भी है, मंजुला जी हमको अच्छा एड्रेस किए हैं। कि हम एक बहुत अच्छा परिवार हो गया है सुधीर जी। अब बहुत आपको खुशी से ये करते कि ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी जब भी हमको मालूम पड़ा, जब ये रवि जी ने इनिशिएटिव लिया, रवि राजू ने, तो हम बोले हम तो कर रहे हैं पर फिर भी हम आएंगे, और हम चाहते थे कि आप आए, आप हमको इंस्पायर करें। बहुत अच्छा बोला आपने सुधीर जी, एंड वी आर रियली इंस्पायर्ड। एंड इतना बोलते हैं कि हम खाली रुकेंगे नहीं, हम करते जाएंगे, हम हमारा तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगा हम करते रहेंगे। एंड कम्युनिटी इज़ वेरी प्रोएक्टिव, एंड आपको इतना ये भरोसा देता हूँ कि हम एक परिवार हो चुके हैं और हम पूरा जान दे देंगे इसके लिए, परिवार को। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आप जब बता रहे थे मंदिर के निर्माण के बारे में स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसा लग रहा था कि एक मटका है, उसमें से शहद टपक रहा है, और जो पीछे पिक्चर है वो एक सामने नज़ारा बन के आ रहा था कि बहुत ही भव्य मंदिर, और अपनी जो भारतीय जनता है ये अपने समर्पण से और संग्रह से बनाने जा रही है। हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं हम लोग फिर से मिलके। और जैसे कि अभिजीत जी ने बताया कि हम सब आपके साथ हैं। सर, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज आपको मिली हूँ फर्स्ट टाइम। श्री सुधीर जी आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश and 3 states, head of 39 organizations, of which BJP is one, VHP is one, Seva Bharati is one. Sir, you deserve a big round of applause. आप बहुत ही समाये हैं, ये मैंने देखा है। Thank you so very much, sir. So Ravi ji is handing over the check. Salute this.
Let us give him a big round of applause on the contribution of Sri Ram Mandir. Everybody here. I'm Kalpesha, one of the founder trustees for Bharatiya Ekta Sangathan. I welcome you all for this gathering, and I hope that you will, from the heart, take initiative in telling about this beautiful, I would say, an activity where everybody should be acknowledged and also to be told and educated. Everybody has been talking about donations, but I think जो कर सेवक जो बोलते हैं हम लोग ये अपने मन से करना है. And I thank all the donors who have come forward to do the donation. Thank everybody for joining us today afternoon for this beautiful event. Yeah, thank you, Balji. Thank you for taking over the. Yeah. Thank you very much. Namaskar to everybody. Thank you.